Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy class 11 chapter 4 and in part 1st. In this video we will going to start a new chapter Process and Basis of Accounting, and in this chapter we have to discuss 4 points. First is the process of accounting, second is a basis of accounting, and basis of accounting is classified into two uh, categories. First is a cash basis of accounting and second is a accrual basis of accounting. Third, we have to differentiate, we have to discuss about the difference between the cash and accrual basis of accounting, and fourth is a hybrid, a mixed basis of accounting. Let's start a new topic, process of accounting. Accounting process begin with the origin and identification of business transaction is followed by recording, classification, summarization of business transaction, culminating in preparation of the trial balance and financial statement. That is a financial statement that include the profit and loss account, balance sheet. Accounting process begin with the origin and identification of business transaction. So firstly we have to identify the business transaction. The business owner have to transaction in various forms. Some are the business nature, some are the personal. We have to record only those transactions which are in nature of business. Otherwise, personal transactions are not recorded in the book of accounting. The identification of business transaction. Accounting deal with the business transaction which are monetary in nature. Firstly, we should focus on the transaction. The transaction should be a business. Secondly, after identify the transaction is business transaction, then we have to identify the nature of the transaction. Nature of transaction is always should be in monetary nature. That means in cash form, amount form. In the other word, the transaction which cannot be measured and expressed in term of money cannot be recorded in accounting. We can say that in other word, those transactions which are not in term of money nature. It means that some transaction related to the effort and some transaction related to the in statement form. So we cannot record those transactions which are not in money term. Firstly we have to record all those transactions which are in money form. For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by appropriate documents such as a cash menu, purchase invoice, sales invoice, pay-in slip, and checkbook, passbook, etc. The documents which provide the evidence of the transaction is called a source document. Source documents are those documents which are the evidence for recording of accounts. There are the lots of the receipt, and through this receipt we have to record in the book of account. The receipt is purchase invoice, sales invoice. When the businessman purchase something for the business, purchase any goods for the business, then after purchasing those goods, the businessman have a purchase invoice and sales invoice. When the businessman sells something to the outsider, then he has to issue a sales invoice, and this invoice is the evidence for the for recording sales, for recording the account. Pay slips, checkbook, and cash book. All these evidence, all these books and invoice work as a evidence, and all this is called a source documents. तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक एविडेंस की तरह हमारे ट्रांजैक्शन में वर्क करते हैं. जैसे
purchase invoice, sales invoice and pay-in slips, checkbook. Second, preparation of invoice. On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers, and then on the basis of vouchers, recording is made in the journal and book of original entry. Journal, in other words, we can say that the book of original entry. Vouchers are printed separately by all the firm in their own name. A separate voucher is prepared by each transaction and it specifies the account to be debited and credited. Source documents generally attached to the voucher. Firstly, preparation of voucher. Through this picture, you can easily understand about the voucher, and the voucher number is given, date is given, and the particulars and amount and total and signature of the manager and accountant which are involved. And firstly, we should focus about the XYZ Private Limited and the address of the XYZ Private Limited company. The preparation on the basis of source document entries. First of all, recorded on voucher. Before जब हम लोग कोई भी चीज़ सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. अब उससे पहले हमको क्या चीज़ रिकॉर्ड करना है, अपने वाउचर्स को. वाउचर्स में हमें जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे रिसीट हैं, पेमेंट हैं, उस चीज़ को हम लोग सोर्स वाउचर्स में रिकॉर्ड कर लेंगे. और कभी कभी वाउचर खुद ही एक क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है. एक डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे है ही है, वो खुद ही एक रिसिट होता है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है. तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है देन ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर रिकॉर्डेड इज मेड इन द जनरल एंट्री. तो जो वाउचर्स के बेसिस पर जो वाउचर्स में मेंशन होगा उसी के जो वाउचर में रिकॉर्ड होगा उसी के बेसिस पे जनरल एंट्री कर ली जाती है. बहुत सारा कभी कभी होता है डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से भी एंट्री की जाती है. तो वाउचर्स क्या होता है, ये आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म विद देयर ओन नेम. हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हर एक कंपनी जो होती है वो अपने नाम से वो एक प्रिंटेड होगी और हर एक फर्म अपने नाम से ही उस वाउचर को प्रिंट करेगा. A separate voucher is prepared by each transaction. और कभी कभी होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है. इट स्पेसिफाइड द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड. और इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अमाउंट जो है हमारा क्रेडिटेड करना है और कौन सी चीज़ को हमको डेबिटेड करना है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड about the point of the preparation of vouchers. Third point is the recording in the book of general entry. After preparation of voucher, sometimes some source documents are also attached with the voucher, and all these documents are used as evidence before for recorded in the book of entry. Third point is recording the book of general entry. जब हम लोग इसी वाउचर और इसी सोर्स डॉक्यूमेंट से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक ऑफ एंट्री जो जनरल अकाउंट से जनरल एंट्री है उसी में मतलब जनरल में जो है ओरिजिनल एंट्री जो है इसी के ही थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वाउचर योर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इस एक ऐसी बुक, ये है क्या, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये एक बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले कोई भी वाउचर्स है मेरे पास तो वाउचर्स के थ्रू, या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है तो उसके थ्रू सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपने जनरल बुक में. जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहा गया है बुक ऑफ जनरल एंट्री. Journal is one of the book of the journal entry in which the transaction are recorded in the chronological order according to the principle of the double entry system. हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके. तो जनरल जो है एक ऐसी ओरिजिनल बुक है जहाँ पर हम सारी चीज़ जो है डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हैं. किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल को. और हम लोग जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. उसी को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है,
है जनरल एंट्रीज में ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। When the size of the business is small, it may be possible to record all the transaction in the journal. तो जहाँ पे ये फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारा बिजनेस बहुत ही स्मॉल साइज़ का है तो वहाँ पे सारी चीज़ हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? एक सारे ट्रांजैक्शन जो हो गए तो जनरल में ही जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। बट व्हेन द साइज ऑफ द फर्म ग्रो एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ वेरी लार्ज, जब उस फर्म जिसकी बिजनेस साइज जो बहुत ही बड़ी है तो वहाँ पे एक फॉर्म में मतलब एक ही जनरल बुक में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ये मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि उसको कई सारे उसके सब जनरल या स्पेशल जनरल जो है डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक ट्रांजैक्शन को उस पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिसीट ऑफ पेमेंट से, पेमेंट ऑफ द कैश या रिसीट ऑफ द कैश उससे रिलेटेड है तो उसको हम कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द क्रेडिट परचेज, अब जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे क्रेडिट परचेज पर मतलब उधार वाली कोई चीज़ होगी या क्रेडिट परचेज पर है तो उसको परचेज बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द क्रेडिट सेल, जो क्रेडिट सेल पर होगी तो उसको सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से सारे बुक को हर एक बुक होगी एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, वो जनरल का ये सब जनरल होता है। ये किस सिचुएशन में पॉसिबल होगी? जब फर्म बहुत ही लार्ज स्केल पर वर्क कर रहा है। फोर्थ पॉइंट इज अ पोस्टिंग ऑफ लेजर। अब जब पहले हम लोग जनरल में एंट्री करते थे उसके बाद जो है लेजर में, लेजर क्या होता है? ये सेकेंड स्टेप होता है और वहाँ हम लोग जनरल से ही ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट करते हैं लेजर को। द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्रीज recorded in general a subsidiary book to the respective accounts in general। अब सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांसफ़र करेंगे जनरल से कहाँ पे? लेजर की तरफ। अब कुछ जनरल में भी हमने बताया कि कुछ उसके सब्सिडरी बुक होती है जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, तो इन सब चीज़ को कहाँ रिकॉर्ड, उन सब से भी ट्रांसफ़र करके लेजर में लाते हैं। लेजर है क्या? लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन विच all the transactions ultimately find their place under their respective account in duly classified form. For recording in transaction ledger, all transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at a one place in an account open in their name, which will provide the complete picture of the transaction related to them at glance। इसमें क्या कह रहा है कि लेजर में क्या करते हैं हम लोग, सारे ट्रांजैक्शन जो भी है जो हमारे जनरल में उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसको मतलब अलग अलग करते हैं और जो जिस नेचर का होता है उसको डायरेक्ट उसकी एक बुक बनाते हैं और उसमें उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अब हम लोग जो इसके और जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो सब चीज़ इसी के प्रैक्टिकल के ऊपर है। बस अभी आप लोगों को इस चीज़ को जानना है कि पहले जनरल में होती है, फिर उसके बाद लेजर में आएगी, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, फिर फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो है पूरे ईयर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे कि फर्म जो है फर्म का बैलेंस को डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। इसमें हर जैसे कि एग्जांपल दिया जो भी सेल्स अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट जितनी भी सैलरी पेड की गई है या सैलरी रिसीव की गई है तो वो सैलरी में हो जाएगी। रेंट पेड किया गया है तो वो उसमें रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट अकाउंट, तो ये सारी चीज़ जो है वो हमारे किस में होगी? लेजर में ही सारे ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर दिया गया जनरल से। फिर प्रिपरेशन द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट स्टेप क्या है कि जब हम लोग जनरल की बैलेंसिंग के बाद हम प्रिपेयर क्या किया जाएगा? ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। इस बैलेंस के ट्रायल बैलेंस क्या है? इस स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है
जो प्रिपेयर किया जाता है विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है जो चेक करता है हमारे किसको, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। जो पोस्टिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जो भी पोस्ट किया गया है, जो भी मतलब कि जनरल से हमारे लेजर में आया, लेजर के बाद अब हम इसको देखेंगे, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हर चीज़ को पोस्ट करके देखेंगे कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुई है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ये चेक करता है और बैलेंसिंग चेक करता है लेजर अकाउंट्स की। फाइनेंशियल, इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है तो इट इंडिकेट दैट द सम एरर इन पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हैज़ अकर्ड एंड स्टेप आर टेकन टू लोकेट द रेक्टिफाई सच एरर। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में लास्ट में जो बैलेंसिंग हमारी जो है वो एक प्रॉपर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, उस एरर को आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर गलती हुई है और फिर उसको पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। इसी से जब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि 3 चीज़ में कैटेगराइज किया गया है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। उन फाइनल स्टेटमेंट को जब प्रिपेयर किया जाएगा तो उसके लिए जो है ट्रायल बैलेंस ऐसा बेसिस है, एक बेसिस फॉर्म है, उसी के बेसिस पर जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। So I hope you can understand all the point, and you have any doubt in any part you can ask me question. Thank you.